હેલો ફ્રેન્ડ્સ, લાસ્ટ સેશન્સમાં મલ્ટિપ્લિકેશન ટેકનિક્સ શીખ્યા. દેર આર અધર ફંડામેન્ટલ થિંગ્સ આપણે કોઈને કોઈ સ્ટેજ પર શીખેલા છીએ પણ પ્રેક્ટિકલી આપણે યુઝ નથી કરતા કે આપણે નથી કરી શકતા. સો વી શુડ રિવાઇઝ. ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી પણ આવી શકે અથવા ધીસ વુડ બી યુઝફુલ while you solve examples of any topic. Today let us discuss divisibility rules. Basic rules, not very complicated rules, but at least basics. For example, if any number, if you have to check whether it is divisible by 2 or not, how can you check? કોઈ પણ નંબર 2 થી ડિવિઝિબલ છે કે નહીં કેવી રીતે ખ્યાલ આવશે? વેરી સિમ્પલ. તમારે 2 માટે ચેક કરવું હશે. ડોન્ટ યુ થિંક લાસ્ટ ડિજિટ ઇઝ ઇનફ? Whatever may be the size of the number, last digit is enough to say whether the given number is divisible by 2 or not. Right? Last digit should be 0 or even number. 0, 2, 4, 6, 8. આમાંથી કંઈ પણ વેલ્યુથી એડ થશે last number, so we can say this is divisible by 2. Last digit should be either 0, 2, 4, 6 or 8. Similarly, 5 માટે, if you have to check any given number is divisible by 5 or not, same, just see the last digit, nothing else. Last digit should be 0 or 5, that's it. Right? Clear? Very simple. What you will do for 4? Whatever will be the size of number, 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, if you have to check whether the given number is divisible by 4 or not, just see the last 2 digits. Last 2 digits की जो number form થાય, that must be multiple of 4, or it should be divisible by 4. Right? We'll see the examples. For example, let us see if you have a number 1944. So last 2 digits 44. Is it divisible by 4? Yes. So the whole number is divisible. Whatever may be the size. For example, 28512. Last 2 digits 1, 2. Yes, it is a multiple of 4. So it is always divisible by 4. Okay. Similarly for 8, you have to see last 3 digits. This number, you have to see last 3 digit. If it is multiple of 8, yes, it is definitely divisible by the whole number. 5 and 2 is 8 cube. Right? You must remember cubes at least 1 to 10. So yes, this is also divisible by 8. For example, this is a number 28012. Let us say last 3 digits 012. This is not divisible by 8. So this number is not divisible by 8. Okay. So for 2 and 5, just observe last digit. For 4, last 2 digits. For 8, last 3 digits. For 3, sum of digits. जो भी नंबर दिया गया है उसके सारे डिजिट्स को ऐड करो. Sum of digits should be multiple of 3. Right? Sum of digits should be multiple of 3 or divisible by 3. And similarly for 9, sum of digits should be divisible by 9. Okay? Clear? For example, एक नंबर है 2832. 10, 3, 13 to 15. So total 15 हुआ. 15 3 का मल्टीपल है तो 3 से है. So this is divisible by 3 but not divisible by 9. क्योंकि 15 है वो 9 के टेबल में नहीं आता है. It's not a multiple of 9. Right?
तो यहाँ ये भी ध्यान रखें कि जो नंबर 3 से डिविजिबल है जरूरी नहीं है सब 9 से हो, बट उल्टा हमेशा ट्रू है, जो 9 से होगा वो डेफिनेटली 3 से होगा, बिकॉज 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9, राइट? सो 2832 डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9. ओके, सिमिलरली बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, बहुत सारे नंबर्स आते रहेंगे, और भी देखते हैं. कोई भी बड़ा नंबर आया, सपोज कोई भी बड़ा नंबर है, आपको 18 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये दिया गया नंबर 18 से डिविजिबल है या नहीं. तो 18 को दो को प्राइम फैक्टर में डिकम्पोज कर दो, लाइक 18 इज मेड अप ऑफ व्हाट, 2 and 9. सो कोई भी नंबर लिया, फॉर एग्जांपल 2 6 5 2 2, मुझे चेक करना है 18 से डिविजिबल है या नहीं. तो 18 इज मेड अप ऑफ व्हाट, 2 and 9. लास्ट डिजिट देख के पता चलता है कि ये 2 से तो है, तो डायरेक्ट मैं 9 से चेक करूंगा. अगर 9 से है तो वो 18 से है, 9 से नहीं है तो 18 से नहीं है. 9 का रूल क्या था? सम ऑफ डिजिट्स. टोटल 17 हो रहा है. 17 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, सो 9 से नहीं है मतलब 18 से नहीं है. आंसर. सो कोई भी नंबर के लिए आप ऐसे चेक कर सकते हो. सपोज मुझे कोई भी बड़ा नंबर है, मुझे चेक करना है कि ये नंबर है 263432. चलो ये नंबर है, थोड़ा बड़ा नंबर लिया. मुझे चेक करना है कि ये नंबर 24 से डिविजिबल है या नहीं. मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. 24 माइंड में सोचो, उसके दो पार्ट क्या बन सकते हैं, इजी कोई भी पार्ट हो. सपोज मेरे दिमाग में आ गया 8 and 3, तो जो नंबर 8 and 3 दोनों से होगा वही 24 से होगा. यस और नो? राइट? अग्री? 8 and 3 दोनों से डिवाइड होगा तो ही वो 24 को डिवाइड कर सकता है. ठीक है? जो नंबर 24 का मल्टीपल कौन हो सकता है? जो 8 and 3 दोनों का है. राइट? इजी क्या रहेगा मेरे लिए चेक करना? 3 का. तो मैं चेक करूंगा ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं. व्हाट इज द रूल फॉर 3? मेथड क्या है? सम ऑफ डिजिट्स. टोटल क्या हो रहा है? टोटल हो रहा है 20. है क्या 3 से? नहीं, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये 3 से नहीं हो सकता, तो 24 से तो कहां से होगा? तो आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 24. ये 24 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है? क्लियर? सो कीप दिस इन माइंड. कोई भी नंबर है ऐसे 11 and 99. सपोज ये मुझे चेक करना है ये नंबर है 99 से डिविजिबल है या नहीं. पहले तो मैं 9 से चेक करूंगा. 99 है तो डिकम्पोज करो, 9 and 11 दोनों से होगा तो ही 99 से होगा, बाकी नहीं होगा. सो 9 और 11 दोनों से होगा. इसी क्या पड़ेगा? 9. चेक करते हैं. 17 टोटल. हमको पता है 9 का मल्टीपल है ही नहीं, तो 9 से नहीं तो 99 से कैसे होगा? राइट? सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन कीप इन माइंड. कोई भी नंबर 6 से चेक करना है, 2 and 3 दोनों से होगा तो ही 6 से होगा. कई बार ऐसी टेक्निक्स आपका बहुत सारा कैलकुलेशन का टाइम सेव कर लेगी. आपके 4 ऑप्शंस होंगे, आपको पता है कि ये आंसर आना चाहिए, तो ये आंसर में मल्टीपल ऑफ 6 तो कंपलसरी है. तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो 3 से या 2 कोई भी एक से डिविजिबल ही नहीं हो रहे या फैक्टर ही नहीं है, तो वो तो होना पॉसिबल ही नहीं है. सो यू कैन सेव लॉट ऑफ टाइम दिस वे. राइट? 11 का रूल देखते हैं. और फिर बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे. ऐसे सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप, बट बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट हाउ ट्विस्टेड क्वेश्चंस कैन कम and how efficiently you can answer, that also we'll discuss in the next session. Let us see the rule for 11. हमने 2 का देखा, 3 का देखा, 4 का देखा, 5 का देखा, 8 का देखा, 9 का देखा, 11. बाकी भी है बहुत सारे, बट वो रूल को अंडरस्टैंड करना, उसको डाइजेस्ट करना और उसका यूज करना उससे ज्यादा है कि सपोज 7 के बारे में पूछा तो डायरेक्ट चेक कर लो, वो इजी रहेगा. 11 का रूल, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑल्टरनेट ग्रुप्स. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. एक्चुअली इट इज इवन प्लेस नंबर्स एंड ऑड प्लेस नंबर्स. दोनों का जो ग्रुप बना ऑल्टरनेट, उनका सम करो और दो सम का जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस अगर 0 या 11 का मल्टीपल हुआ तो ही नंबर 11 से डिविजिबल हो सकता है. इट वुड बी बेटर क्लियर विद द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल 2 4 3 2 1 3 9 ये नंबर है, मुझे चेक करना है 11 से डिविजिबल है या नहीं.
कोई भी एक एंड से शुरू करो, एक छोड़ के एक ऑल्टरनेट नंबर ग्रुपिंग कर दो, ठीक है, और एडिशन कर दो, 2 3 5 6 और 9 15, बाकी के नंबर का भी एडिशन कर दो 9। तो कोई भी नंबर को अगर 11 से डिविजिबल होना है, ये दो का डिफरेंस 0 होना चाहिए या दो इक्वल होना चाहिए। मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। सपोज 1331, ये 11 का क्यूब है तो 11 से डिविजिबल है। देखो कोई भी एक एंड से शुरू करो, 1 3 टोटल 4, बाकी 1 3 टोटल 4, 4 and 4 डिफरेंस 0, राइट। सो दिस इज डिविजिबल बाय 11। सपोज 2 3 6 1 2, 11 से है यानी 2 6 8 और 2 10, 1 और 3 4, इक्वल होना चाहिए या डिफरेंस 11 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 11, राइट। इज इट क्लियर? बहुत सारे और चीजें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। सो हाउ इसका यूज कर सकते हैं और कॉम्पिटेंसी डेवलप कर सकते हैं, वी विल बी इन टच और देखते रहेंगे। कीप शेयरिंग दिस नॉलेज एंड विजडम विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।